Hello students, welcome back. We were doing chapter 2 structure of atom and today's topic is finding wavelength of spectrum lines. Let us start our topic. Here the first question is, what is the wavelength of a photon emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2 state in a hydrogen atom? How could we find the wavelength for this spectrum line? We have a formula, that is nu bar equals r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. We have done this formula, and this is nu bar and this is representing wave number. This is wave number, and here we have to find out wavelength of the spectrum line, and we know that nu bar equals 1 upon lambda, and we can write it like this: r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Okay, here the n2 will be 5, n2 will be 5, n2 will be 5 and n1 will be 2. Putting this value, we can calculate its value, and r's value is, what is r's value here? R's value will be, it will be 2, see here, it will be 109,677 centimeter inverse. Sometimes you can see it in different books, this 679, this is centimeter inverse. Okay, and when we will represent it in meter inverse, it will be 1.09677 into 10 to the power 7 meter inverse. Okay, and let us solve this. We have formula, that is nu, that is 1 upon lambda we have formula 1 upon lambda equals r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is minus n2 square, n1 equal to 2 and n2 equal to 5, and r's value what we have to put here, that is r equal to 109,677 centimeter inverse. We can put it in meter inverse also, but here we are taking centimeter inverse. And what will be this? This will be like this, you can see, and putting the values, 1 upon lambda equals 109,677 इंटू n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 स्क्वायर, हेयर n1 वैल्यू 2 तो 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 को हम डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हैं. सिमिलरली n2 की वैल्यू 5 है, तो इसको हम क्या 1/5 स्क्वायर यानी कि 25 लिख सकते हैं. अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स 109,677 इंटू
अब इसको इस वैल्यू को सॉल्व करें जब हम 1/4 माइनस 1/25, तो दिस विल बी इट्स एलसीएम विल बी 100 एंड सॉल्विंग दिस वी विल गेट लाइक दिस 25 माइनस 4 इट मीन्स 21/100। 21/100 हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लें 21/100। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये एक्चुअल में वेव नंबर है। क्या है? वेव नंबर। तो फिलहाल हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो आप इस वैल्यू को देखते रहो। ओके, तो वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे हम कि हम लैम्डा के यानी कि 1/λ लिखा हुआ था, तो इसको हम λ/1 कर दे रहे हैं। λ/1 कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू राइट साइड की भी चेंज हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी, तो दैट विल बी 1/0967 इंटू, अब ये 21/100 था तो ये कितना हो जाएगा 100/21 हो जाएगा 100/21। अच्छा, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर लोगे 1/096677 it will be 9.12 into 10 to the power minus 6 centimeter inverse here. Okay, wait, it will be centimeter because we have reversed it. तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा इंटू 100/21। तो 100/21 से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 100/21 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4.761 आ जाएगी। 100/21 की वैल्यू 4.761। अब इसको 9.12 इंटू 10 to the power minus 6 और इंटू 4.761 को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 43 पॉइंट, अब इसको आप यहीं नीचे लिखना है यहाँ पर, ठीक ना, 43.420 इंटू 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ जानते हैं, ये सेंटीमीटर। अच्छा, एक नॉलेज हमारे पास और होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 to the power 8 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power 8 एंगस्ट्रॉम। ओके, और 1 मीटर इक्वल्स होता है 10 to the power 10 मीटर, 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ सेंटीमीटर में हम वैल्यूज ले रहे हैं, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे हम 10 to the power 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? 43.420 इंटू 10 to the power minus 6 वैल्यू को। तो क्या होगा ये देखो अब, तो इंटू 10 to the power 8 जब करेंगे हम तो ये वैल्यू 10 to the power 8 ये वैल्यू करोगे तो ये 10 to the power 8 और ये 10 to the power minus 6 कैलकुलेट करोगे होके कितना हो जाएंगे 10 to the power प्लस 2 हो जाएगा, और 10 to the power प्लस 2 यानी कि 100, तो 100 से 43.420 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा 4342.0, और ये वैल्यू ही एंगस्ट्रॉम वैल्यू होगी, यानी कि यही वैल्यू क्या होगी, वेवलेंथ होगी। किसकी? उस स्पेक्ट्रम लाइन की जो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है 5th एनर्जी ऑर्बिटल से 2nd एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर रहा है। तो 4342 यानी कि 4342 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द शॉर्ट एंड long wavelength limits of Lyman series in a spectrum line. Here it is spectrum line of hydrogen. Okay, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि जब ये शॉर्ट वेवलेंथ की बात करें ना तो आपको क्या रखना है कि जो भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, तो शॉर्ट वेवलेंथ की जब भी ये बात करें तो हमें क्या रखना है कि जो N2 की वैल्यू है, N1 तो 1 ही होगा, N1 की 1 होगा ना। लाइमन याद है ना, लाइमन सीरीज के लिए
जो n1 होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करते थे, ठीक ना, लाइमन के लिए फर्स्ट में। फिर उसके बाद बामर था, तो बामर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेकेंड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप करते थे। फिर उसके बाद पाशन था, तो पाशन में थर्ड में जंप करते थे। फिर उसके बाद ब्रैकेट में फोर्थ। फिर उसके बाद फंड था, तो फंड के लिए ये फिफ्थ एनर्जी लेवल में जंप करते थे। तो ये वैल्यूज आप याद कर लो, ओके, तो ये बेटर होगा और आप ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू तो 1 ही लेनी है, ठीक, बट n2 की जो वैल्यू लेनी है ये याद रखने वाली है। n2 की वैल्यू हमें इनफाइनाइट लेनी है। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू हमेशा आप इनफाइनाइट लोगे। फिर उसी क्वेश्चन से जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किया उसी से सॉल्व करेंगे। तो 1/λ इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखते हैं, वही रखते हैं 109,677 इंटू 1/n1 की वैल्यू 1, तो 1/1 स्क्वायर माइनस, अब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। तो 1/1 का स्क्वायर ये वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, यानी कि 109,677 इंटू 1 हो जाएगा। ये ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ओवरऑल इक्वेशन की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिस विल बी 1/λ इक्वल टू 109,677 इंटू 1, ओके। अब ये 1/λ की वैल्यू, अब क्या करना है हमें, इसको रिवर्स करना है, क्योंकि ये वेव नंबर हमें मिला हुआ है ना। तो वेव नंबर जब मिला है तो हमें क्या, इसकी हमें वेवलेंथ निकालना। तो इस वैल्यू को जब हम रिवर्स कर देंगे, ओके, हियर इट विल बी 109677। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। तो उसका कैलकुलेशन आपको बता देते हैं, ये देखो, लैम्डा इक्वल टू 1/109,677। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर मिलेगी, -6 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁸8 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हम क्या करते हैं, तो इतने सेंटीमीटर्स वैल्यूज़ हैं, तो इसमें हम 10⁸8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 10⁸8 और 10⁻⁻6 कैलकुलेट होकर कितना हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम लोग क्या कि प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो +8 -6 तो +2 हो जाएगा। तो 9.12 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻2 बच जाएगा यहाँ से, ओके। 10, तो ये 9 आप पीछे जाके देख सकते हो वहाँ पर, ये 9.12 इंटू 100 और दिस वैल्यू विल बी 912 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये किसके लिए आया, ये आ गया शॉर्ट वेवलेंथ की वैल्यू। किसके लिए, शॉर्ट वेवलेंथ की वैल्यू आ गई, ये शॉर्ट वेवलेंथ की वैल्यू आई, ओके, वेवलेंथ। अब यहाँ पर हमने n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखा। अच्छा, जब हमें लॉन्ग वेवलेंथ निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो फिर n2 की वैल्यू ना मिनिमम रखेंगे। शॉर्ट के लिए n2 की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं तो इनफाइनाइट हो सकता है, और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू मिनिमम, तो मिनिमम कितना हो जाएगा इस सीरीज लाइमन के लिए। हम लोग लाइमन सीरीज कर रहे हैं ना, तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 1 में एनर्जी लेवल में जंप करता है, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो इसके लिए n2 की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी। अब बामर के लिए मिनिमम n2 की वैल्यू कितनी होगी, बामर के लिए 3 होगी। उसी तरह पाशन के लिए मिनिमम 4 हो जाएगी, ओके। तो उस पर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो उसको भी सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, ये देखो, 1/λ इक्वल टू आर की वैल्यू 109,677 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर
यही तो होगा। और फिर 1/λ इक्वल टू 109,677 इंटू, अब इस वैल्यू को पूरे को कैलकुलेट करो तो ये 1/, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो ये 1 ही होगा, 1 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू 3/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3/4। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, λ/1 कर देंगे। ये क्या करना है, हमें λ/1 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो λ/1 निकालेंगे तो ये 1/, हो जाएगा 109,677 है ये, इंटू 4/3 हो जाएगा ये। ओके, अब इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, अब इसकी वैल्यू तो जानते हो ये कितना मिलेगा, याद कर लो। आपको क्या मिलेगा इसकी वैल्यू 9 ये 9 होगा, 9.12 इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे -6 मिल जाएगा। फिर इसको जब इसके साथ कैलकुलेट करोगे 4/3 से मल्टीप्लाई करके, फिर यानी कि इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो एंगस्ट्रॉम में जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो वो एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, वो एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए ही। What is wavelength of light emitted when electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level N4 to an energy level N2? यानी कि N2 में आ रहा है तो ये किसके लिए, बामर सीरीज होगा, बामर ही तो होगा। ओके, बामर। अब इसके लिए भी वही फार्मूला 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर N2 की वैल्यू, N1 और N2 की वैल्यू हमें रख देना है। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और N4 की वैल्यू कितनी होगी, N4 की वैल्यू 4 ही होगी। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, N2 की यहाँ पर 2 का लिखना है ना, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो 1/λ, अब ये क्या हो जाएगा 109,677, ये सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू होगी। ठीक, अब 1/4 माइनस 1/16, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगी 16, 4 माइनस 1, तो 3/16 वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 3/16 वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लैम्डा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि वेवलेंथ तो लैम्डा है, 1/λ नहीं, तो λ/1 हम कर देते हैं। तो पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करना है, 1/109,677 इंटू ये 16/3 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर में। और हम ये चीज़ जानते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁸ एंगस्ट्रॉम, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू रख देते हैं 10⁸, तो इसमें आप 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एंगस्ट्रॉम वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इतने की वैल्यू भी आपको मालूम है 1/109,677 की कितनी होगी, याद कर लो, ये हमेशा अक्सर आएगा, ये की पॉइंट होगा आपके लिए हमेशा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.1112 कर देते हैं इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू आप रख के इसको कैलकुलेट कर जब करोगे तो आपको एट लास्ट ये वैल्यू कुछ अप्रॉक्स 4860 एंगस्ट्रॉम के पास मिल जाएगी, या ये 4870 के पास भी मिल सकती है।
48 70। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे।